Hello students, welcome back to Constitution classes. मेरे को बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं आप लोगों की और मैं उनको रिजॉल्व भी कर रहा हूँ, आपको रिप्लाई भी कर रहा हूँ सबको व्हाट्सएप से और ईमेलर्स से. सो आई होप आप लोगों को आंसर्स मिल रहे हैं और आप लोग आंसर्स सेटिस्फाइड हैं. तो कीप सेंडिंग मी योर क्वेरीज ऑन nitinrakeshllb@gmail.com और जो मैंने व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर किया था दैट इज 9838380700. इस पे क्वेरीज भेजिए. आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज. नाउ कमिंग टू टुडेज क्लास, द टॉपिक इज emergency provisions. Now this emergency provision has been incorporated in our constitution और ये प्रेसिडेंट की पावर्स का भी एक पार्ट है क्योंकि जितने भी इमरजेंसी हैं, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ इमरजेंसीज और तीनों ही इमरजेंसीज जो हैं वो प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकता है. सो इट कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट चैप्टर ऑल्सो. आप बोल सकते हैं प्रेसिडेंट पावर्स का पार्ट है, बट इसको हम अलग से पढ़ाते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविजंस. आर्टिकल 352 टू 360 में डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमरजेंसीज को मेंशन किया गया है. तो आज ये चैप्टर हम टेकअप कर रहे हैं. सो फर्स्ट सी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इमरजेंसीज आर देयर. एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ इमरजेंसीज. वन इज नोन एज नेशनल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी है पहला. एक है स्टेट इमरजेंसी एंड थर्ड इज नोन एज फाइनेंशियल इमरजेंसी. सो दीज आर द थ्री kinds of emergencies. Now let's understand in details about these emergencies. Let's start with the first one, national emergency. So किन grounds पे national emergency लग सकती है? What are the grounds? The first ground is war. So if our country is in a state of war, then the president can proclaim national emergency. The second instance can be external aggression. Now they are quite similar, war and external aggression. But what is the difference between war and external aggression? In war, both the countries, ये दो countries में war हो रही है, so they एक resolution pass करते हैं, एक proper formal way होती है that we are in state of war. External aggression is when one country is sending its troops towards the border of another country, or they are being aggressive, they are shooting, or their fighter planes are crossing the territory. So one country is showing aggression towards the another country. So जब कोई country पाकिस्तान या चाइना कोई aggression show करता है तब भी लग सकती है, और जब हमारी country या दूसरी country war की state में हो तब भी लग सकता है. So war, external aggression. And third instance when the national emergency can be proclaimed is known as armed rebellion. Now what is armed rebellion? When the citizens of India takes up arms, बंदूक, बम, तलवारें ये उठा लेते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इसको आप सिविल वॉर काइंड ऑफ थिंग, दैट इज नोन एज आर्म रिबेलियन. जब हमारे ही लोकल्स, हमारे ही सिटीजन्स, इंडियंस गवर्नमेंट के अगेंस्ट आर्म्स उठा लेते हैं, दैट इज नोन एज आर्म रिबेलियन. So these are the three instances where on which national emergency can be proclaimed: war, external aggression, and armed rebellion. Now this word armed rebellion was not there. Initially it was internal disturbance. But by 44th Amendment 1978, the word internal disturbance was replaced by armed rebellion. आप सबने सुना होगा there was an emergency was proclaimed by Mrs. Indira Gandhi in 1975. तो उस टाइम का जो रीजन था उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस पे लगाया था. सो पोस्ट दिस इमरजेंसी व्हिच वाज प्रोक्लेम्ड बाय मिसेस इंदिरा गांधी टाइम, इस वर्ड को जब इनकी गवर्नमेंट चली गई और दूसरी गवर्नमेंट आई, जब आपके मोरारजी देसाई जी बने हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो जो उस गवर्नमेंट ने इस वर्ड को अमेंडमेंट लाया, उस वर्ड को इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस करके आर्म रेबेलियन वर्ड लेके आया.
So these are the grounds of national emergency. Now let's see, there have been thrice national emergency which has been proclaimed to India, in India, sorry. So first national emergency was proclaimed in 1962 at the time of Indo-China War. And the reason was external aggression. This was the reason to proclaim the emergency, that was external aggression. In 1971, the national emergency was proclaimed when India and Pakistan were in the state of war, and due to internal disturbance, in 1975, it was proclaimed by the president due to internal disturbance. ये 1975 वाली बड़ी कंट्रोवर्शियल है, आपने भी शायद सुना होगा, और मैंने भी आपको पीछे केस लॉज में और थोड़ा सा आइडिया दिया था आपको कि एक केस हुआ था हमारी कंट्री में. उसमें उस केस में क्या हुआ था कि फैक्ट्स क्या थे, राज नारायण नाम के एक लीडर थे who fought election against Mrs. Indira Gandhi from Raebareli and he lost the elections. Then राज नारायण ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल किया कि नॉट सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इलाहाबाद में, कि इंदिरा गांधी ने जो इलेक्शन जीता है दैट इज ड्यू टू मैल प्रैक्टिसेस एंड शी हैज यूज्ड द गवर्नमेंट मशीनरी एज पोलिंग एजेंट्स ऑफ कांग्रेस एंड मैल प्रैक्टिसेस और बेमानी ब्राइबरी से उन्होंने इलेक्शन जीता है. तो उसका जजमेंट आता है इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज जस्टिस सिन्हा इसका जजमेंट देते हैं एंड शी बार्स मिसेस इंदिरा गांधी फॉर फाइटिंग इलेक्शन फॉर 6 years और कुछ समय के लिए सजा भी देते हैं और कहते हैं आपको प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट छोड़ना पड़ेगा, आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते हो. तो ये जजमेंट के बाद क्या होता है कि बहुत अनरेस्ट हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं. सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी को बस इतना रिलीफ मिलता है कि उनका जो इम्प्रिजनमेंट होता है वो स्टे हो जाता है, रेस्ट वो जो हाई कोर्ट का ऑर्डर होता है उसको ही अपहेल्ड करती है सुप्रीम कोर्ट. सो इसके बाद इंदिरा गांधी क्या करती हैं, वो प्रेसिडेंट को बोलती हैं कि आप जो है ये इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दीजिए. तो ये 1975 की इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई थी. 1962 ड्यू टू इंडो चाइना वॉर, 71 इंडिया पाकिस्तान वॉर एंड ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस 1975 thrice national emergency has been proclaimed in India. So let's see what is the procedure to proclaim national emergency. So national emergency proclaim करने का जो तरीका है, before the president will proclaim national emergency, he will get a written recommendation by the cabinet. So written होगा recommendation. Cabinet क्या होता है? Cabinet means cabinet ministers and including the prime minister. So cabinet word has been defined in Constitution of India. जिनको पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं उनको कैबिनेट में रखा जाता है, जैसे होम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं. These all are the examples of cabinet minister. So cabinet includes other cabinet minister plus prime minister. So these two, this body, prime minister plus other cabinet minister, gives a written recommendation to whom? To the president of India that he should proclaim national emergency. Now what does, once the president of India receives the written proclamation, जब वो written proclamation receive करते हैं तो वो क्या करते हैं, emergency proclaim कर देते हैं. Now once the emergency is proclaimed, it is going to be there for at least 6 months. एक बार emergency proclaim होता है तो 6 महीने के लिए emergency proclaim होता है. ठीक है. अब ये इमरजेंसी जो प्रोक्लेम कर देते हैं 6 months के लिए, इसको 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन, डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन से 30 days के अंदर में लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस से पास कराना होता है प्रेसिडेंट को बाय स्पेशल मेजॉरिटी. स्पेशल मेजॉरिटी मींस 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग. इनसे 30 days में अप्रूव कराना होता है. अगर 30 days में अप्रूव नहीं होगा, then what will happen? It will cease to operate. A national emergency will cease to operate on the 30th
end of the 30th day. So normal procedure is a written recommendation by the cabinet. After the president receives the recommendation, same day he proclaims national emergency. Once national emergency is proclaimed, it should be approved by both the houses of the parliament within 30 days and it should be done by special majority. Now special majority जो आया है ये word, ये 44th अमेंडमेंट से आया है. इससे पहले ये सिंपल मेजोरिटी से आप कर सकते थे. जब इंदिरा गांधी जी ने 1975 में लगाई थी तो सिंपल मेजोरिटी से लगाई थी. बट 44th अमेंडमेंट 1978 से ये स्पेशल मेजोरिटी कर दी गई, सिंपल मेजोरिटी चेंज कर दिया गया. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब क्या हो गया है, प्रोक्लेमेशन पास हो गया है. मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दिया है इसको बाय स्पेशल मेजोरिटी. नाउ इट इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर कमिंग 6 months. तो एक बार जब 6 months के लिए इसको कंटिन्यू कर दिया तो ये 6 महीने तक लगा रहेगा. ना इसको कब तक एक्सटेंड कर सकते हैं, इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर इनडेफिनेट पीरियड. मतलब नेशनल इमरजेंसी 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल लगी रह सकती है, कोई डेफिनेट पीरियड नहीं है. बट प्रोसीजर क्या होगा, एवरी 6 months इट शुड बी अप्रूव बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. यानी एवरी 6 month पे लोकसभा और राज्यसभा इसको 2/3 मेजोरिटी से अप्रूव करेंगे तो फिर 6 महीने के लिए ये एक्सटेंड हो जाएगी. तो ऐसे 6 महीने के लिए ये तरीके से एक्सटेंड करके इट कैन गो फॉर indefinite period. Now how it can be revoked, कैसे इसको खत्म किया जा सकता है. It can be revoked by the President of India. President of India रिवोक कर सकता है. और लोकसभा के भी 1/10 मेंबर्स अगर बोलते हैं कि नहीं हमें लगता है इमरजेंसी का जरूरत नहीं है, इट कैन बी रिवोक फ्रॉम द डेट जब ये साइन करके देंगे इस बात को. सो दिस इज द प्रोसीजर रिगार्डिंग नेशनल इमरजेंसी. लेट्स रिपीट वंस. There will be a written recommendation by the cabinet. Once the president receives the written recommendation, he proclaims national emergency. From that date, within 30 days, it should be approved by Lok Sabha and Rajya Sabha by special majority. Once Lok Sabha and Rajya Sabha approves, the national emergency is proclaimed for 6 months. Once it is approved, it is for 6 months, as I said, and it can be extended to इनडेफिनेट पीरियड. बट एक्सटेंशन क्या होगा, हर 6 महीने पे लोकसभा और राज्यसभा को इसको अप्रूव करना होगा. इट कैन बी रिवोक्ड बाय लोकसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ नेशनल इमरजेंसी, हाउ वी प्रोक्लेम इट, हाउ वी रिवोक इट. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द इफेक्ट्स, व्हाट पावर्स प्रेसिडेंट possesses once national emergency is proclaimed. That we all know that, मैं इस बात को पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, that India is we are a federal, we follow federal system, but we have a unique tendency of centralization. So ये हमारा एक यूएसपी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. वैसे तो हम फेडरल हैं, लेकिन जब हमारे पास इमरजेंसी प्रोक्लेम होता है सो पावर सेंटर्स के पास चली जाती है. तो यही होता है इसमें भी नेशनल इमरजेंसी में कि पावर्स सेंटर्स के हाथ में ज्यादा आ जाती है. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो जब भी नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है, प्रेसिडेंट का स्पेशल पावर्स आती हैं. क्या क्या पावर्स होती हैं, प्रेसिडेंट डायरेक्ट करता है स्टेट एग्जीक्यूटिव्स को. जो स्टेट के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ये अपनी पावर्स को कैसे एक्सरसाइज करेंगे. अब यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, अभी मैं इसके बाद आपको स्टेट इमरजेंसी पढ़ाऊंगा. स्टेट इमरजेंसी में जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होती है इसकी पावर 0 हो जाती है और वो पावर गवर्नर के पास चली जाती है और गवर्नर प्रेसिडेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चलता है, पार्लियामेंट के थ्रू. बट यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की पावर 0 नहीं हो जाती है. एग्जीक्यूटिव को कैसे क्या करना है ये कौन बताता है, ये प्रेसिडेंट बताता है. सो वो द एग्जीक्यूटिव इज कंट्रोल्ड बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी. ओके, नाउ द सेकेंड थिंग इज द प्रेसिडेंट कैन एक्सटेंड the normal tenure of Lok Sabha 1 by 1 year. At a time का मीन्स है 1 year करके indefinite time तक भी बढ़ा सकते हैं, बट एक बार में 1 साल बढ़ाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न होता है, जो बजट्स में अप्रूव होता है,
उसको भी मॉडिफाई कर सकता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी. सो मॉडिफिकेशन ऑफ द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर और स्टेट जो बजट से होता है उसको मॉडिफाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकता है ड्यूरिंग टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी. अब आपने सुना होगा कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी के टाइम पे. सो आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते. आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते हैं. आर्टिकल 19 जो आपकी 6 कोर फ्रीडम्स हैं वो सस्पेंड हो जाता है अगर नेशनल इमरजेंसी का रीजन है एक्सटर्नल अग्रेशन और वॉर. अगर रीजन आर्म्ड रिबेलियन है, there were 3 reasons, 3 grounds on which national emergency can be proclaimed. One is war, the second is external aggression, third is armed rebellion. तो फर्स्ट और सेकंड ग्राउंड पे लगता है सो आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड. अगर थर्ड ग्राउंड पे लगती है आर्टिकल 19 इज नॉट सस्पेंडेड. नाउ पार्लियामेंट आल्सो possesses a special power that they can make laws on those items which are mentioned in state list. अभी हमने आपको ये लिस्ट नहीं पढ़ाई है. There are 3 kinds of list. जब हम आपको सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप का चैप्टर पढ़ाएंगे then I'm going to tell you that there are 3 kinds of list. These lists are basically, these are schedules, and in this schedules it is given that on which schedule which body will have the power. Means state government किस पे लॉ बनाएगा, किसका टैक्स लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे लॉ बनाएगा, किसका टैक्स लेगा, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. थर्ड, स्टेट और सेंटर दोनों किस पे पावर रखेंगे. सो देयर इज अ स्टेट लिस्ट, देयर इज अ यूनियन लिस्ट, देयर इज अ कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट मींस both center and state has the power. So now what happens when national emergency is proclaimed, स्टेट लिस्ट यानी जिसपे स्टेट के पास पावर था लॉ क्रिएट करने का, लॉ बनाने का, वो पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उन आइटम्स पे भी लॉ लेजिस्लेशन बना सकता है. बट ये लॉ जो है इमरजेंसी सीज होने के 6 महीने बाद, 6 मंथ्स के बाद सीज कर जाते हैं. तो सपोज नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होता है आज की डेट में और जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट के आइटम पे एक लॉ लेजिस्लेशन बनाता है, इन्फोर्स कर देता है उसको, और ये जो इमरजेंसी है ये दिसंबर 2020 में सीज हो जाता है. सो आफ्टर 6 months of December 2020, that will be the month of June, this law will cease to operate in June 2021. So for the temporary period के लिए लॉ बना सकता है पार्लियामेंट जो स्टेट लिस्ट के आइटम है उसमें during the course of national emergency. Okay. Now the next question is national emergency proclamations under the purview of judicial review. मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट या कोई सुप्रीम कोर्ट ये चेक कर सकता है कि जो नेशनल इमरजेंसी लगाया है सही है या गलत है. सो मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये जजमेंट दिया है कि जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है. बट कितना चेक कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? एक तो प्रोसीजर फॉलो किया गया है प्रॉपर कि नहीं नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करने में. दूसरा, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके इंटेंशन मैलिफाइड तो नहीं थे. तो दिस 2 things can be seen or checked by judicial review by the Supreme Court whether proper procedures followed or not, or the intention was nullified or not. This can be checked, or a judicial review can be done by the President of India. So this is the powers of President and special powers of President and the Parliament during the time of national emergency. So आपने इसका ग्राउंड समझ लिया है. ग्राउंड्स, प्रोसीजर एंड पावर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी. आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है और एक्सटर्नल अग्रेशन या वॉर. So let's move to now state emergency. State emergency is also known as constitutional machinery failure emergency. So state emergency or constitutional machinery failure emergency both are same. Now these are proclaimed on 2 grounds.
The president proclaims state emergency on two grounds. One, when on the report of the governor of a particular state, president comes to know that a state is violating the Constitution of India while governing that state, then President of India can proclaim state emergency. So the governor of a particular state reports this to the president that the state is violating the Constitution of India while governing the state. So president have this power that he may, not definitely, he may proclaim the state emergency. So this is one ground. The other ground is that when the state government fails to comply the directions of union by means central government. So the central government जो भी directions दे रही है उसको लगातार comply करने में fail हो रहा है state government, तब भी President of India has this power to proclaim the state emergency. There are two grounds: violation of Constitution of India and when the state government fails to comply with the directions of the central government. On these two grounds, the state emergency can be proclaimed. Now let's see what is the procedure to proclaim state emergency. Now state emergency is proclaimed by the President of India. Once he proclaims this emergency, it should be approved within 2 months. So suppose today is 10th April and he proclaims a national emergency on 10th April 2020. So within 2 months, that means 10th June tak, it should be approved by both the House of the Parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. And this approval is by simple majority. Simple majority means 50% present in voting. So ये approve हो जाएगा. Once it is approved, it will be there for 6 months. So 6 months के लिए state में state emergency proclaim हो गई. Now this can be extended maximum for 3 years. 6 months करके हम proclamation और approval बढ़ा सकते हैं. लेकिन 3 years तक कब करेंगे? जब दो चीजें satisfy होंगी, 2 points. पहला point है, first point is that in any part of India there is national emergency has been proclaimed. The whole country is under national emergency or any part of India is under national emergency. तो ये एक इंसिडेंट होना चाहिए. दूसरा, the election commission is stating that it is not feasible or it is not possible to conduct elections in coming 1 year. जिस स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगा हुआ है उस स्टेट में 1 साल तक 1 ईयर तक ऐसा नहीं पॉसिबिलिटी है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट करा. इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. इसका रीजन नेशनल इमरजेंसी हो सकता है, नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड है, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, पॉलिटिकल अनरेस्ट हो सकता है, आर्म रिबेलियन हो सकता है. सो इलेक्शन कमीशन ये सर्टिफाई कर रहा है आने वाले 1 साल तक हम इलेक्शन यहाँ पे कंडक्ट नहीं करा पाएंगे. तो एवरी 6 months इट कैन बी extended and for every extension it should be approved by both the house of the parliament. इसको 6 months में extend करते जाएंगे by simple majority और ये extend हो जाएगी maximum 3 years की हो सकती है. रिवोक करने का क्या सिस्टम है? हाउ इट कैन बी रिवोक? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिवोक. प्रेसिडेंट जब चाहेगा स्टेट इमरजेंसी रिवोक हो जाएगी. Now let's talk about the special powers of the president during the time of state emergency. वो गवर्नर के थ्रू वर्क करता है. दैट मीन्स द प्रेसिडेंट वर्क्स थ्रू द गवर्नर. सो गवर्नर गेट स्पेशल पावर्स. द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच वाज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर एंड द लेजिस्लेचर. तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका जो कैबिनेट होता है, चीफ मिनिस्टर, बाकी जो पोर्टफोलियो उसके मिनिस्टर्स होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर, व्हाटएवर, होम मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट, all these are, the whole council is dissolved, so they do not have any power now. Their power becomes 0 and the whole state works through the governor. Parliament can passes the state budgets and legislation bills. जो central legislature है हमारा parliament means Lok Sabha
एंड राज्यसभा, ये स्टेट लेवल के स्टेट बजट्स और यहाँ के लॉज और लेजिस्लेशन बिल पास करेगा। अब स्टेट स्टेट लेवल का लेजिस्लेचर नहीं पास करके, क्योंकि लेजिस्लेचर वहां का डिसॉल्व कर दिया गया है, तो पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल का जो लेजिस्लेचर है वो बजट्स और लेजिस्लेशन बिल्स पास करेगा। Now, in very famous case एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया दैट प्रेसिडेंट ने जो प्रोक्लेम किया है स्टेट इमरजेंसी, इसके इंटेंशंस को स्क्रूटनाइज किया जा सकता है। एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कर्नाटका केस है, बड़ा फेमस केस है 880s का। इसमें एक गवर्नमेंट जो है एसआर बोमाई जिसके चीफ मिनिस्टर थे, इनकी जो गवर्नमेंट थी ये कोलिजन की गवर्नमेंट थी, तो दूसरे जो पार्टी थी कोलिजन की, उन्होंने सपोर्ट हटा लिया इनसे, एंड ही आस्क्ड द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट फॉर द टाइम कि हमको टाइम दिया जाए कि हम कॉन्फिडेंस मोशन या विश्वास मत पास कर पाए लेजिस्लेचर में। प्रेसिडेंट ने इनको टाइम नहीं दिया था और प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था, तो उसके ऊपर एक केस लॉ हुआ था बड़ा फेमस, और उसमें जजमेंट ये आया था कि प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन है इसको स्क्रूटनाइज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट कि उसने जो स्टेट में इमरजेंसी लगाया है वो ठीक है या नहीं। दिस जजमेंट वाज गिवन इन एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। So third kind of emergency is known as financial emergency. Now, when financial emergency is proclaimed, when the President of India is satisfied that the stability, the financial stability or the credit of India is threatened. तो इंडिया का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और जो क्रेडिट है वो थ्रेटेंड है। ये कब हो सकता है? एक एग्जांपल ये भी है कि जो इंडिया का मेन सबसे बड़ा जो ट्रेजर है, खजाना है, फंड है, दैट इज नोन एज कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड, दैट इज द बिगेस्ट फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड। सो कंसोलिडेटेड फंड CF में आने वाले 6 मंथ्स का अगर एक्सपेंडिचर, जो 6 मंथ्स का कंट्री का एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, वो अगर नहीं है, सो प्रेसिडेंट मे, अगेन द वर्ड मे, कैन प्रोक्लेम financial emergency. So this can be one of the examples. So when the president have these reports and is satisfied that the financial stability or the credit of India is threatened, he can proclaim financial emergency. Once financial emergency is proclaimed, it should be approved by both the House of Parliament within 2 months. 2 months में इसको अप्रूव करना होता है by लोक सभा एंड राज्यसभा by simple majority. So by simple majority, it should be approved by Lok Sabha and Rajya Sabha within 2 months. Again, it can be extended to indefinite period. Indefinite period के लिए इसको हम extend कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि एक limited period, it can be extended. Again, extension के लिए हम हर ये लोकसभा और राज्यसभा से इसको अप्रूव कराते रहेंगे every 6 months. It can be revoked by the president. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही लगाता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इसको रिवोक करता है। आज तक कभी भी नेशनल इमरजेंसी इंडिया में प्रोक्लेम नहीं हुई, टिल डेट नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम नहीं हुई। सो व्हेन इट कैन बी प्रोक्लेम, व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द स्पेशल पावर्स व्हिच आर possessed by the president of India during financial emergency. He can give direction to the state. तो स्टेट गवर्नमेंट से उनको डायरेक्शन देता है टू ऑब्जर्व द कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। नाउ व्हाट आर द कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी मींस जो हाई स्टैंडर्ड्स हैं फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस ने जो सेटअप किए हैं और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है उनको बिल्कुल अडर करें, उनको माने। केवल किन किन पैरामीटर्स पे खर्चा होगा, कैसे कैसे होगा, ये जो फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बड़े बड़े हैं उनको अडर करें, ये बोलता है, डायरेक्शन देता है प्रेसिडेंट। ऑल द फाइनेंशियल बिल्स एंड मनी बिल्स ऑफ द स्टेट
shall be passed after the consideration of the president. जितने भी फाइनेंशियल बिल्स हैं और मनी बिल्स हैं स्टेट खुद नहीं पास कर सकती, पहले किसका कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कंसिडरेशन, प्रायर कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, तभी ये बिल्स पास हो पाएंगे, फाइनेंशियल एंड मनी बिल्स. He can issue direction to reduction of salaries of government servants. गवर्नमेंट सर्वेंट्स में कौन कौन आ जाएगा, गवर्नमेंट सर्वेंट्स में सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स आ जाएंगे, पुलिस, एग्जीक्यूटिव, आईएएस, ब्यूरोक्रेट्स, एमपीज भी आ जाएंगे, इवन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक आ जाएंगे. सो द प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट और he can give direction that reduction of salaries of all government employees, IAS, bureaucrats, judges, MPs, इन सबका सैलरी रिडक्शन. अभी जो हमारी गवर्नमेंट है, अभी कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है, होल कंट्री इज गोइंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस. आप देखिए, दो फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम नहीं हुई है, बट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डायरेक्शंस इशू किए हैं कि 30% रिडक्शन होना चाहिए सारे एमपीज की सैलरी में. योगी आदित्यनाथ जी ने भी एमएलए के उत्तर प्रदेश में जितने एमएलए हैं उनकी सैलरीज का 30% रिडक्शन फॉर कमिंग 2 years किया है. सो इस तरीके के डायरेक्शन दे सकते हैं. जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती है तब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी में रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर्स और रिडक्शन ऑफ सैलरीज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कराते हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी. I hope आपको पूरा चैप्टर समझ में आया. Whatever the questions are, you can send me on the WhatsApp or on the emails. Thank you so much. Have a good day.